Hello everyone. In this class we will discuss about Newton's third law of motion and also why the Newton's second law is called a real law of motion. But you just remember in previous class we have already discussed Newton's first law of motion as well as the Newton's second law of motion briefly. So you remember the Newton's first law, that is, whenever there is no external force impressed on a body, then the body continuously is at rest and in motion condition along a straight line. तार जे कोनोसी बॉडी ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस न हेबा जाय बॉडी जदी रेस्ट रे रहबो आ मोशन रे जबो बोले मोशन रे रहबो. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Now in first law we know the two content, that is in first law we know about the qualitative definition of force. What is the meaning of force? That means according to Newton's first law, if there is no external force impressed on a body, if there is no external force impressed on a body, then the body is at rest, or if the body is in moving condition, then the body is in moving condition. मैंने फोर्स ना पड़वा जाए बॉडी रेस्ट जदि रहबो रेस्ट रहबो मूविंग रे रहबो बोले मूविंग रे रहबो. तो तुम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जस्ट के अल्टरनेटरी थिंकिंग करो. जो फोर्स न पड़वा जाए बॉडी जदि रेस्ट रे रहबो मूविंग रे रहबो मूविंग रे रहबो. तो फोर्स पड़ले कोन हो बॉडी का तार अवस्थार परिवर्तन करबो. यानी जदि रेस्ट रे अच्छे हम फोर्स पकेले मोशन हे जीवो आ मूविंग रे अच्छे हम फोर्स पकेले हम से रेस्ट हे जीवो. So Newton's first law को जस्ट के अल्टरनेट रे जदि हम थिंकिंग करिबा ले दैट इज गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. दैट मींस फोर्स न पड़बा जे बॉडी रेस्ट रे अछि मूविंग रे अछि. रेस्ट जदि अछि रेस्ट रे रहबो मूविंग रे अछि मींस मूविंग रे रहबो. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो फोर्स पड़ले कोन हो बॉडी तार अवस्थार परिवर्तन करबो. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को के जस्ट अल्टरनेट रे हम थिंकिंग करिबा ले दैट इज गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. Then Newton's first law give another property of body, that is inertia. That there is no external force impressed on that body, then the body is continuously in that state. That means if the body is at rest condition, it will remain rest. If the body is in moving condition, it will be remaining in moving. So this property of body is called inertia. That means जदि गोटे body rest रे रहबो रेस्ट सबुले रेस्ट रे रहबा पई चाहबो. That is inertia property of rest. जदि बॉडी मूविंग रे रहबो ले मूविंग रे सबुले रहबा पई चाहबो. That is inertia property of moving. जदि बॉडी स्पेसिफिक डायरेक्शन रे रहबो ले सबुले स्पेसिफिक डायरेक्शन रे रहबा पई चाहबो. That is inertia property of direction of a body. So Newton's first law give two content, that is one is qualitative definition of force and another is inertia property of body. So clearly बुझलो. Then Newton's second law कोन कहिथिला? Just I remember that what you have already teach. Then Newton's second law कौन कहथिला? Newton's second law force and magnitude कहथिला. Because we know that the Newton's second law states that the force impressed on a body is directly proportional to rate of change of momentum. Suppose P is the momentum and dP upon dt is the rate of change of momentum. Rate denoted time. With respect to time, the body changes momentum. And the external force impressed on a body is directly proportional to rate of change of momentum. That means suppose this is a body and if we apply external force, then this body move with velocity with its own mass. And if the body move with velocity with its own mass, then it is said to be momentum. And if we exert force, then the body get momentum. That means हमें जेते फोर्स अप्लाई करना बॉडी से मोमेंटम हेबो. हम जो से फोर्स लगाबो बॉडी जोर से जीवो. त माने फोर्स जेते पड़बो बॉडी रो मोमेंटम भी सेटे चेंज हेबो. So that is Newton's second law, and as per Newton's second law, the force impressed on a body is directly proportional to rate of change of momentum. Directly denoted as if we increase the force, then the rate of change of momentum of body also increase. If we decrease the force, जदि हम धीरे से जदि फोर्स अप्लाई करना the rate of movement of the body is also decreases. धीरे से जीवो. Clearly बुझला. It is Newton's second law of motion. Then
if we put the value that is d upon dt and instead of momentum we know that the formula of momentum is mass with velocity, then if the body, whenever the body move its mass is always constant, body move kale tar mass constant rehbo kintu tar velocity ta change hobo. So mass jehetu constant bahar kar diyo, so this is dv upon dt and we can be write f proportional f and instead of dv upon dt we can be use ma. So likely f is equal to k constant proportional atla pore ma. So Newton's second law give the quantitative definition of force, how much force exerted on a body. और जिनिस टा मने रखिथिबो जे फोर्स जे कोनोसी जे जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉडी ऊपर पड़िबो से डायरेक्शन में मोमेंटम भी जीवो. सपोज धरो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सर्टेड होला तो बॉडी रो मोमेंटम भी फोर्स रो डायरेक्शन में ही जीवो. So Newton second law सेति पय लगा दिछि the force exerted on a body is directly proportional to rate of change of momentum along the direction of force. Force जो डायरेक्शन में पड़ी छे मोमेंटम भी से डायरेक्शन में चेंज हेबो बॉडी रो. So this is Newton's second law and according to Newton's second law we get the magnitude of force or formula of the force, that is mass into acceleration. And if we take mass is equal to unit mass and acceleration is also unit acceleration, then suppose k is unit, then force is also equal to 1 unit. The unit of force is that much of force which produce unit acceleration of a body of unit mass in a body of unit mass. तो हमने बहुत सोचा किसी भी ना जब आप मास के 1 यूनिट करना, एक्सेलरेशन के 1 यूनिट करना, के जदि 1 यूनिट करना, के तुम कंसीडर न कले भी चलबो कांस्टेंट जेतु, तो मास को 1 यूनिट करबो, एक्सेलरेशन को 1 यूनिट करबो, ले फोर्स ऑटोमेटिकली 1 यूनिट हेबो. सो फोर्स को केते 1 यूनिट करबो व्हेन इट प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़ले से एक्सेलरेटेड हेबा कि नहीं, मोमेंटम हेबा कि नहीं. सो it produce 1 unit of acceleration in a body of mass 1 unit. तो acceleration 1 unit है वो, mass 1 unit है वो, से तो हम force के कहवा 1 unit. So लेके देखियो. So 1 unit of force is that much of force which produce acceleration of 1 unit in a body of mass of 1 unit. तामने 1 unit acceleration produce करबो 1 unit mass रो बॉडी ऊपरे तो हम फोर्स को कहमा 1 यूनिट ऑफ फोर्स. देन हमें देखमा जे यूनिट ऑफ फोर्स, यू ऑलरेडी स्टडी द यूनिट ऑफ फोर्स इन चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन. सो यूनिट ऑफ फोर्स मन रखिथिबो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट इन व्हिच वी कैन बी मेजर द फोर्स. तामने दुईटा यूनिट अछि जे यूनिट द्वारा हम फोर्स के मेजर करी पारना. लेकिन दिथिबो there are 2 unit in which force can be measured. Force can be measured. That is chemical unit, absolute unit and ग्रेविटेशनल यूनिट. ना माने फोर्स को हम दुईटा यूनिट रे मेजर करी परमा. यूनिट बजे बुझी परछो फोर्स केते पड़ला 5
5 जदि हम लिखबा बोले रिप्रेजेंट करबा भूल हेबा जदि हम यूनिट केजी पुट करमा बोले दैट इज रिप्रेजेंट मास जदि हम इन यूनिट मीटर पुट करमा दैट इज रिप्रेजेंट लेंथ जदि हम इन यूनिट सेकंड पुट करमा दैट इज रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी टाइम that means unit is so important for your representation of a value and if you left the unit then your mark is also left about half one jahabi so unit बहुत important so force केते पड़ला हम केते करबा खाली 5 लिखले ही हेबनी तो हम force केते पड़ला force 5 न्यूटन पड़ला कि force 5 डाइन पड़ला so unit सहित ही फिजिकल क्वांटिटी के लिखिबा को पड़िबो so देखो तो फर्स्ट हम देखमा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स तो मन रखिथिबो जे हमें एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एब्सोल्यूट यूनिट ले भी हमें एसआई और सीजीएस सिस्टम देखमा जेने कि तुम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रे यूनिट डायमेंशन में पढ़िछो यूनिट में भी एसआई सिस्टम हेबा सीजीएस सिस्टम भी हेबा सपोज मोर एग्जांपल देली मास ऑफ केजी एंड आल्सो मास का मेजर करि पारमा ग्राम तो केजी जेतु बड़ यूनिट से रिप्रेजेंट्स कॉल बिलोंग्स टू एसआई यूनिट और ग्राम जेतु स्मॉल यूनिट से belongs to CGS unit. As well as length. Length can be measured by meter as well as centimeter. So meter per unit, it is represent or belongs SI unit, centimeter belongs to CGS unit. So simply मन रखबो as a physical quantity है two or more unit, so unit can also divided into some system. So in a unit को हमें divide करिछु. So meter can system रे represent होछि SI system और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम सो मन रखिथिबो एटा माने ऑलरेडी तमे पढिछो तार माने मीटर और किलोमीटर भी हेबा बहुत जिनिस अछि सेंटीमीटर किलोमीटर होचे मिलीमीटर और बहुत यूनिट अछि किंतु तमे सिंपली मन रखिथिबो जे लेंथ और एसआई यूनिट होचे मीटर और सीजीएस यूनिट होचे सेंटी तो मन रखिथिबो जे कोनसी फिजिकल क्वांटिटी रो दुईटा सिस्टम रो यूनिट रहबा गुडी यूनिटटा एसआई सिस्टम में रहबा और सीजीएस सिस्टम में रहबा आउ एपीएस सिस्टम अछि एमके सिस्टम अछि एमके तो एसआई सहित समान किंतु तमे सेटा जरूरी नै किंतु तमे जरूरी होछि एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम सो एब्सोल्यूट यूनिट को हम देखिबा एसआई और सीजीएस सिस्टम रे एज वेल एज हम ग्रेविटेशनल यूनिट के भी देखिबा एसआई और सीजीएस सिस्टम रे तो फर्स्ट हम देखिबा एब्सोल्यूट यूनिट एब्सोल्यूट unit so in SI system the absolute unit in SI system is newton जने कि हमें बेसिकली फोर्स रो यूनिट के लेक्सो SI ने न्यूटन SI ने न्यूटन लेक्सो आउ फोर्स रो CGS यूनिट के तमे लेक्सो डाइन ऑलरेडी तमे पढिछो तो ई न्यूटन आउ डाइन फोर्स रो के यूनिट रे जिवे एब्सोल्यूट यूनिट रे जिवो और एब्सोल्यूट यूनिट रो SI सिस्टम फोर्स रो यूनिट हेबा न्यूटन और एब्सोल्यूट यूनिट रो सीजीएस सिस्टम रो फोर्स रो यूनिट हेबा डाइन सो मन रखिबो द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन एंड द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन so first we can write SI system absolute unit in SI system so the absolute unit of force in SI system is Newton. SI system is Newton. So you know that force is equal to mass. ML लिखना K क्या होता है मैंने इधर बोला force is equal to mass into acceleration. So जब we can define 1 Newton of force. We can define 1 Newton of force. Newton is only represented as capital N. If we define 1 Newton of force, Newton is the SI system. SI system is Newton. So clearly बुझला जे force रो absolute unit SI system रे कितना हो Newton. So जदि हमें जदि 1 Newton force define करना मतलब mass 1 kg और acceleration हमारा 1 meter per second square. This is the unit of acceleration. Acceleration is equal to velocity upon time. Velocity रो unit meter per second by time रो unit second. That is meter per second square है acceleration unit. और चलो so देखो
मुई यारे केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर काहे लगेली बिकॉज़ हमर फोर्स रहउछे एसआई सिस्टम रो यूनिट रे सो ई यारे भी तमे एसआई सिस्टम लगे राखे जे बाध्य जेतु एलएचएस साइड तमर एसआई होचे तो यारे भी एसआई लगेला सो मास रो एसआई सिस्टम केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो क्लियरली बुझला तो आमे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स केते बेले कहि पारमा जेते बेले फोर्स पड़वा दर बॉडी ऊपर फोर्स पड़ले से एक्सीलरेटेड हबा कि मोमेंटम हबा तो बॉडी ऊपर फोर्स पड़वा परे जदि से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे जदि एक्सीलरेटेड होची एक्सीलरेटेड केते रे होची 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होची से बॉडी केते मास 1 केजी मास सेते बेले से जो फोर्स पड़ुचे दैट इज said to be 1 newton of force impressed on their body. So हम लिखी पाएंगे that 1 newton of force is that amount of force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg तमे जदि ଗୋଟେ बॉडी रे फोर्स पड़वा से कंपलसरी एक्सीलरेटेड हवा मोमेंटम हवा सो 1 न्यूटन फोर्स केते बेले पड़वा बेले हम कहमा जेते बेले से बॉडी ता एक्सीलरेटेड हवा केते अमाउंट रे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अमाउंट रे बॉडी ता एक्सीलरेटेड हवा केते बॉडी रो मास 1 केजी रो मास सो लगा जाय 1 न्यूटन फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स और दैट मच ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स पड़ला परे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हबा केते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 केजी तो मन रखिथिबा तमे डिफाइन करूछो मींस फार्मूला जानबा अछि फार्मूला जानले ही तमे डिफाइन करो बिकॉज़ इन मी एक्सीलरेशन और मास के काजे लेके बिकॉज़ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन so we can be use the unit of acceleration and mass so 1 meter per second square acceleration रे जदि ଗୋଟେ body of 1 kg mass एक्सीलरेटेड हवा सेते बेले तार ऊपर केते फोर्स पड़ुची कहि पाम 1 न्यूटन फोर्स सो यूनिट रो डेफिनेशन डायमेंशन रो सब जिनिसटा मन रखिथिबो फार्मूला ही इंपोर्टेंट एबा हम देखमा एब्सोल्यूट यूनिट इन सीजीएस सिस्टम देखमा absolute unit in CGS system the absolute unit of force in CGS system is the absolute unit of force in CGS system is dyne so you know that force is equal to mass into acceleration so if we want to define the one dyne of force then force is one dyne then if force is one dyne then mass is 1 gram and acceleration is 1 centimeter per second square. Why? Because dyne is CGS system, so you keep the unit of mass in CGS system as well as unit of acceleration is also CGS system. Because this is CGS system, so this side also CGS system. So one dyne of force केते बेले कहि पारमा जेते बेले बॉडी ऊपर जेते बेले फोर्स पड़वा बॉडी ऊपर जेते बेले फोर्स पड़वा से केते दूर एक्सीलरेटेड हवा फोर्स पर एक्सीलरेटेड हवा कि नहीं तो केते एक्सीलरेशन हवा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हवा से बॉडी रो मास केते थिबा 1 ग्राम और मास ऑफ एक्सीलरेशन का जे रहउछ बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन सो रे फोर्स जेन पडुची से फोर्स पड़ला पर जेन एक्सीलरेशन का प्रोड्यूस होची से केते हवा 1 centimeter per second square acceleration produce हवा केते फोर्स केते मास ऑफ बॉडी रे 1 ग्राम मास ऑफ बॉडी रे प्रोड्यूस हवा सेटा हम फोर्स जेन पडुचे दैट फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन सो लिखि दबो से समान 1 न्यूटन ऑफ फोर्स जाके लगभग 1 डाइन ऑफ फोर्स 1 को एमती लिखिबो एक्सप्लेनेशन 1 डाइन ऑफ फोर्स इज that much of force or that amount of force which produce
that amount of force which produce an acceleration of देखो डेफिनेशन पूरा समान खाली वैल्यू चेंज करो इन प्रीवियस रे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स लिखी थी इन लिखी 1 डाइन ऑफ फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स तो डेफिनेशन बहुत सिंपल और गुटे लिंकिंग अछि खाली वैल्यू ता चेंज हो सो 1 डाइन ऑफ फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होची 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass in a body of mass of 1 gram sorry so this is absolute unit and absolute unit is the common unit of the force in absolute unit of force the force in SI system can be measured by Newton and the absolute unit of force in CGS system can be measured by dyne मन रखिथो so Newton और dyne का होचन absolute unit of force Newton is the absolute unit of force in SI system and dyne is the absolute unit of force in CGS system मन रखिथो then if we want to compare the Newton and dyne that is the SI system Newton and CGS system dyne if we want to compare then how we can compare so you have already compared the unit of system from one system to another system of a physical quantity by using dimension analysis so in that class also you compare that 1 Newton is equal to dash dyne so in this class also we compare देखो हमने जाने 1 kg is equal to 1000 gram so kg SI system gram CGS system then SI system when converted into CGS system then 1 kg is equal to 1000 Newton so in this case Newton is SI system of force and dyne is the CGS system of force then how can the Newton is converted into dyne that means 1 Newton is suppose 1 kg is equal to dash gram जाती 1000 gram लिखो Similarly, 1 Newton is equal to something dyne थिबो तो केते dyne थिबो देखो तो हमें कंपेयर करबा पे फर्स्ट 1 Newton के नाम एंड 1 Newton हो फोर्स रो यूनिट टू रिप्रेजेंट करछे तो फर्स्ट फोर्स रो फार्मूला लिखि देली एंड फोर्स के जदि मैं 1 Newton करबी ना मास केते हो मास अब 1 kg एंड एक्सेलरेशन अब केते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर then 1 Newton is equal to मतलब dyne करबा আছে so kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI रे अछि से दी जगह ला जेटा न्यूटन थिलो एटा जदी मोदी ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देबी CGS से जीवो तो एटा जदी CGS से जीवो बोले कि न्यूटन भी ऑटोमेटिकली CGS सिस्टम को पळेबो डाइन हे जीवो तो हमके डाइन दरकार तो सेति भाई हम kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करबो सो 1 kg जगह तुम लिखि पारबी 1000 ग्राम दैट इज 10 टू द पावर q ग्राम किंतु 1 मीटर जगह लिखि पारबी मैं 10 square 6 centimeter per second square then 1 Newton is equal to that is 10 to the power 5 and instead of gram and centimeter square gram देखो mass ही वाला CGS system gram acceleration ही वाला CGS system तो इधर जब CGS ही वाला if force then Newton थिला चलो डाइन ही जीवा तो जेहेतु इधर CGS थिला तो सेति पाई ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जाते हैं कितने लिख पाए डाइन So this is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Because clearly बुझला नहीं kg के तो मैं ग्राम कलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कलो तो जेहेतु এটা CGS बोला तो तार जगह तुम यूज करि परबो dyne. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. So it's all about absolute unit of force. Then comes to gravitational unit of force. Gravitational unit of force लगी जो gravitational unit of force is that unit of force which
produce an acceleration which is equal to acceleration due to gravity अपने in a body of given mass ता माने तुम तो जानछो जे गोटे बॉडी ऊपर जदी फोर्स पड़वा ले से कंपलसरी मोमेंट हवा मास विथ वेलोसिटी हवा और चेंज वेलोसिटी चेंज हवा तो हमें कोई पार एक्सेलरेशन तमे जदी गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़वा से एक्सेलरेशन हवा और से फोर्स पड़वा द्वारा जे एक्सेलरेशन ता होची that acceleration is whenever that acceleration is equal to acceleration due to gravity मोर रखिबो acceleration due to gravity in SI system होगा 9.8 about 10 meter per second square acceleration due to gravity का SI system होगा किंतु so if that acceleration is equal to acceleration due to gravity then the unit of force is said to be gravitational unit of force बहुत सहज है जो फोर्स पड़ले तम बॉडी का एक्सीलरेटेड हेबा किंतु से एक्सीलरेटेड जो होची बॉडी का से जदी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सहित समान हेबा तो सेते बेला हम फोर्स रो यूनिट लिखो हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो whenever a body falls towards the earth's surface why the body falls towards the earth's surface whenever we throw a ball upward then that ball is automatically falls toward the earth's surface why because due to presence of gravitational force of earth the any body if we throw upward then always all of the body attracts toward the center of the earth due to the gravitational force of the earth so whenever the ball or any object falls towards the earth's surface due to gravitational force they get accelerated now देखो हमें चौके पोकेमा plus accelerated हबा कि नहीं and that acceleration is produced due to gravitational force of earth से acceleration का प्रोड्यूस होची हमें जेते बेले बॉल को पकोचू से तल को एक्सेलरेटेड ही कोई आसुची का काजे ग्रेविटेशनल फोर्स रो काजे ही से तल को एक्सेलरेटेड ही कोई आसुची so that acceleration is produced due to gravitational force of earth so the acceleration of that body is said to be acceleration due to gravity now if the acceleration is equal to acceleration due to gravity then the unit of force is said to be gravitational unit of force अब फोर्स सहित सब बेले एक्सेलरेशन कनेक्ट ही रहबो बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन जदी तमर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सहित समान है देखो बारंबार कहली जेते बेले बॉलटा तल को आउछे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ रो जे तल को आउछे आ तल को आसिले समय रे से कान होची एक्सेलरेटेड होची और से एक्सेलरेशन ता ग्रेविटी रो का जे होची सो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब से एक्सेलरेशन जदी ग्रेविटी रो एक्सेलरेशन से समान हेबा सेते बेले फोर्स रो यूनिट के हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज़ एक्सेलरेशन ऊपर तम फोर्स डिपेंड करबो सेति पई एक्सेलरेशन जदी ग्रेविटी सहित समान हेबा तो यूनिट ऑफ फोर्स को हम कहबा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आ मन रखिबो एसआई सिस्टम रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो हम देखो हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम रे केते हेबा और सीजीएस सिस्टम रे केते हेबो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम रे न्यूटन होतिला और सीजीएस सिस्टम रे डाइन होतिला एबे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम रे केते हेबो सीजीएस सिस्टम रे केते हेबो देखिबो सो फर्स्ट gravitational unit of force in SI system माने so माने रखि दिबो gravitational unit of force in SI system is kg force kilogram force for
কেজি ফোর্স লিখি পারবো কেজি ফোর্স और weight force weight 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 force so देखो हमें जदि 1 kg force डिफाइन करना and kg force kilogram force is the gravitational unit of force in SI system gravitational unit of force SI system में हमें क्या करना 1 kg किलोग्राम फोर्स सो देखो जदि तमे तो जानिछ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यू मोस्ट ऑलरेडी नो दैट इफ I define 1 kg force is the SI system but this is the gravitational unit of force in SI system so if F is equal to 1 kg force 1 kilogram force then mass is equal to 1 kg into acceleration is equal to 9.8 meter per second square. This is most important. In SI system you can be equal to mass is equal to 1 kg. You can write 1 kg mass equal to 1 kg and acceleration is equal to 1 meter per second square. Then force is equal to 1 newton. But in this class in this situation we study gravitational unit of force so you must be remember that the instead of acceleration you put the value 9.8 meter per second square because acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square simply जदि तमे 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करछो तो तमे जानिछो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन द मास जदि 1 kg हबा एक्सेलरेशन 1 meter per second square हबा सेतबे फोर्स हबा 1 न्यूटन जदि मास 1 ग्राम हबा एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हबा सीजीएस ले फोर्स भी सीजीएस रहबा 1 डाइन किंतु इन जेहेतु हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पढुछ सेति पई एक्सेलरेशन का चेंज हेबो सो एक्सेलरेशन का एसआई सिस्टम में केते चेंज होबा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो 1 kg force is equal to 9.8 તમે જાણો કેજી मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाए तो न्यूटन लिखि पारबो बिकॉज़ केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई रे रहबे मास रो केजी रहबा एक्सेलरेशन रो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई रे रहबा ले यूनिट न्यूटन लिखि पारबो सो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होला तो लास्ट को 9.8 होला हम यूज करि पारमा न्यूटन सो 1 kg force is equal to 9.8 न्यूटन सो सिंपली मन रखो जे 1 kg force हमें केते बेले कहबा जेते बेले तम बॉडी रे केते एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होबा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होबा इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg सो डेफिनेशन लिख दियो 1 kg force is that amount of force which produce an acceleration of 9.8 meter per second square 9. Acceleration due to gravity of लिखि दियो भलो acceleration due to gravity of 9.8 meter per second square in a body of mass कितने 1 kg सॉल्व एबा में देखमा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज सीजीएस सिस्टम का केते हेबा तो ग्रेविटेशनल unit of force in CGS system is gram weight gram force বা গ্রাম weight भी लिख पारबो ग्राम weight भी लिखि पारबो
सो देखो एबे हमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन केन सिस्टम पढ़ना सीजीएस देखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम केते हबो केजी फोर्स बा केजी वेट किलोग्राम वेट लिखि पारबो बा केजी फोर्स लिखि पारबो एबे देखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम केजी जगह की ग्राम ग्राम लगला ग्राम फोर्स बा ग्राम वेट लिखि पारबो सो हमें जदि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मु जदि 1 ग्राम फोर्स बाहर करबा चाहिए 1 g एटा के अदरवाइज लिखि पारबी मु 1 g वेट लिखि पारबी बिकॉज़ तुम मन रखि दिबो जे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में ग्राम फोर्स कोइ पारबो पर ग्राम वेट एसआई सिस्टम में केजी फोर्स कोइ पारबो बा केजी वेट कोइ पारबो सो जदि मु सीजीएस सिस्टम ग्राम फोर्स रो डिफाइन करबा चाहूची ग्राम फोर्स बा ग्राम वेट then it is equal to mass of 1 gram into acceleration due to gravity in CGS system मन रखिथिबो 980 centimeter per second square ई वैल्यू पे देखि हम डेफिनेशन लगामा तो फाइनली आ गुटे जिनिस हबा ग्राम फोर्स बा 1 ग्राम वेट मन रखिथिबो बारंबार कहूचे जे केजी फोर्स होचे एसआई सिस्टम in gravitational unit of force and gram force होचे CGS system in gravitational unit of force अब न्यूटन डाइन तो सिंपली SI and CGS system of absolute unit of force देने लगी पर gram into centimeter per second square is equal to dyne so in this case we can be use 980 dyne so 1 kg force जगह पे तुम्हें लगभग 1 gram force 1 gram force or 1 gram weight is that amount of force which produce an acceleration due to gravity of acceleration due to gravity केते पकेबा 980 पकेबा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज़ सीजीएस सिस्टम ने मन रखि देबा एसआई सिस्टम ने एक्सेलरेशन पकेबा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पकेबा किंतु सीजीएस सिस्टम ने एक्सेलरेशन पकेबा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पकेबा एटा होचे एक्सेलरेशन रो वैल्यू एक्सेलरेशन जाते के रखलो मास जगह 1 ग्राम सो एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन केते पकेबा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन केते पकेबा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कैन नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and CGS system 980 centimeter per second square तो क्या लगला in a body of mass कितने ग्राम 1 gram so it is all about the absolute unit and gravitational unit of force and absolute unit and gravitational unit of force how can we compare the absolute unit and gravitational unit of force in SI system and CGS system एवं में बोलना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और जिनिसटा मन रखिथिबो इफ द सेकंड लॉ देखो इफ द फोर्सेस आर रिप्रेजेंट along 3 axes of rectangular component with respect to rectangular component देखो फोर्स के जगह में लिखी पारमा x एक्सिस रे fx i के y एक्सिस रे लिखी पारमा fy j के and z axis रे लिखी पारमा fz k के so net force in 3 rectangular component is equal to vector rectangular component means the x axis y axis and z axis and in these 3 axes are mutually perpendicular to each other along this axis suppose this is net force and this net force along this axis is fx i k along this axis is fy j k and along this axis z axis is fz k k so this net force is divided into 3 components and if we add these 3 components then we give or find the net force so this net force is equal to mn so m ax i k instead of fx i k we can be use m ax i k
plus m ayjk plus m ajk एक्सेलरेशन भी सही हिसाब रे प्रोड्यूस हेबा जेतु फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे एग्जर्ट होची तो सही हिसाब से एक्सेलरेशन भी अलग अलग डायरेक्शन में हेबा तो देन fxik plus fyjk plus fzkk we can be mass common लेवल कितना हुआ fxik plus fyjk plus az सरला तो हम काली देखमा न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड व्हाई द न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन थैंक यू